નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનો અમારા વિશેષ કાર્યક્રમ આપણું હેલ્થમાં. હું છું આનંદ બારોટ અને આપ મારી સાથે જોઈ રહ્યા છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. દર્શક મિત્રો, જે રીતે રોજ વાત કરીએ છીએ તે આજે પણ વાત કરવા જઈ રહ્યા છે કે કેટીવીના માધ્યમથી અમે જ્યારે રોજ આપણું હેલ્થ કાર્યક્રમ લઈને આવીએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આ કાર્યક્રમ દ્વારા આપના હેલ્થ વિશે, આપની સમસ્યાઓ વિશે, સમસ્યાના સમાધાન વિશે, અલગ અલગ દવાઓ વિશે, અલગ અલગ પદ્ધતિઓ વિશે અને અલગ અલગ સ્વાસ્થ્યને લગતી વિષયો વિશે અમે જાણકારી આપને આપી શકીએ. અને જે રીતે આપે અમારા કાર્યક્રમને સરાહનીય રીતે જે રીતે વેરદાવ્યો છે એ બદલ કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી હું આપ સૌ દર્શક મિત્રોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપ ખૂબ સારી રીતે અમારો આ કાર્યક્રમ નિહાળી રહ્યા છો અને આપના પ્રતિસાદો પણ આપને સારી રીતે મળી રહ્યા છે. દર્શક મિત્રો, વાત કરવા જઈએ તો માથાના વાળથી લઈ અને પગના અંગૂઠા સુધીના શરીરના દરેક અંગની અંદર કંઈક નાની મોટી સમસ્યાઓ કે બીમારીઓ હોય જ છે. પણ જ્યારે વાત કરવી હોય કોઈ એક સ્પેશિયલ વાતની, જ્યારે અમે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી 1.5 થી 2ની વચ્ચે જ્યારે આ પ્રોગ્રામ લઈને આવીએ છીએ ત્યારે વાત કરીએ છીએ શરીરના કોઈ એક અંગમાં થતી તકલીફોની, એના નિવારણની. પછી એ માથાના વાળ હોય કે આંખો હોય, હૃદય રોગ હોય, હાથ પગ હોય કે પછી કિડની કે લીવરની બીમારી હોય, ઘણી બધી વિષયોને લઈને અમે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી આપની સમક્ષ આવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો આજનો અમારો વિષય છે હૃદય રોગ. જી હા દર્શક મિત્રો, અમે હૃદય રોગને એટલા માટે એટલું મહત્વ આવી રહ્યા છે અત્યારે, કેમ કે જોવા જઈએ તો પહેલાંના જમાનાની અંદર લોકોને જ્યારે 50, 60 કે 70 વર્ષ થતા હતા ત્યારે હૃદય રોગના હુમલાઓ આવતા હતા. અને આપણે જ્યારે કોઈની ખબર જોવા માટે જતા હતા ત્યારે એવું કહેતા હતા કે પથારીમાં પડેલા કોઈ બા કે દાદા હોય. પણ અત્યારે આખી જે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે અને કહી શકાય છે કે હાલના જે દર્દીઓ છે એ 30-40 વર્ષના યુવાનો પણ થઈ રહ્યા છે. જી હા દર્શક મિત્રો, જી હા દર્શક મિત્રો, અત્યારે કહી શકાય કે જે યુવાનો છે એ યુવાનો પણ કહી શકાય કે હૃદયરોગનો ભોગ બની રહ્યા છે. સાથે સાથે એમ પણ કહી શકાય છે કે હૃદયરોગમાં જે એ લોકો ખૂબ જ સારી કામગીરી કરી શકતા નથી અને જેના કારણે હૃદયરોગનો હુમલો આવવાની શક્યતા પણ રહે છે. ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય છે કે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી અમે આજે જ્યારે હૃદયરોગનો વિષય લઈને આપની સમક્ષ આવ્યા છીએ ત્યારે ચોક્કસપણે કહી શકાય છે કે આપણે જ્યારે હૃદયરોગની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે હાલના યુવાનોમાં પણ હૃદયરોગની બીમારી જોવા મળે છે. નળીઓનું બ્લોકેજ થવું, સ્ટેન્ડ મુકાવવું, બાયપાસ સર્જરી થવી કે ઘણી બધી નાની મોટી સમસ્યાઓ હૃદયરોગની અહીં આગળ જોવા મળતી હોય છે. ત્યારે ચોક્કસપણે કહી શકાય છે કે જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ હૃદયરોગની ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય છે કે હૃદયની જે સમસ્યાઓ છે એને નકારી ન શકાય. કેમ કે હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી મહત્ત્વનું અંગ છે. હૃદય એ લોહીનું પંપ સ્ટેશન છે. હૃદય દ્વારા આખા શરીરની અંદર લોહી પહોંચાડવામાં આવે છે. એટલે કે જો હૃદય બંધ થઈ જાય તો માણસ મૃત્યુ પામે છે. એટલે કે હૃદયથી અમૂલ્ય જીવનની અંદર કોઈ પણ અંગ નથી એમ કહી શકાય છે. કદાચ બ્રેન્ડેડ માણસ હોય તો અને હૃદય ચાલુ હોય તો એ જીવિત ગઈ શકાય છે. પણ જો હૃદય બંધ હોય અને બીજા કોઈ અંગો ચાલુ હોય તો એ માણસને મૃત જાહેર કરવામાં આવે છે. પણ હૃદય જ્યારે બંધ થઈ જાય છે ત્યારે શરીરના દરેક અવયવો પણ બંધ થઈ જતા હોય છે. એટલે કે ચોક્કસ કહી શકાય કે હૃદય એક એવી વસ્તુ છે કે જેની જાળવણી કરવી ખૂબ જરૂરી છે. હૃદયની જે સમસ્યાઓ જોવા જઈએ તો હૃદયની સમસ્યાઓ એમનેમ ઉપસ્થિત થતી નથી. હૃદયની સમસ્યાઓ ઉપસ્થિત થવાના પણ ઘણા બધા કારણો છે. પહેલાંના જમાનામાં જ્યારે આપણે જોતા હતા કે ઘરના જે વડીલો હોય એ વડીલો સારી કામગીરી કરતા હતા, ખેતરે જતા હતા, પશુપાલન કરતા હતા, નાનો મોટો ધંધો વ્યવસાય કરતા હતા, ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય કે એ વડીલોની કામગીરી સારી હતી. પણ સાથે સાથે એમ કહી શકાય છે કે એમની શારીરિક જે કહી શકાય કસરત એ પોતાની કામગીરીમાં જ કરી લેતા હતા. જ્યારે આજનો યુવાન છે એ સવારે ઉઠી અને સાંજ સુધી દોડ કરતો હોય છે રોજગારી કમાવા માટે, પૈસા એકત્ર કરવા માટે, પોતાનું કેરિયર બનાવવા માટે, જોબ સેટિસ્ફેક્શન માટે, પોતાના જીવનસાથીની શોધ માટે. એટલે કે ઘણા બધા કારણો જવાબદાર છે અને જેને લઈને કહી શકાય છે કે લોકો હવે હેલ્થ કોન્શિયસ ઓછા થતા જાય છે. સવારે ઉઠી અને સાંજ સુધીમાં દોડ ખાવા પીવામાં જે પહેલાં કહી શકાય કે પહેલાંના જે લોકો હતા એ 2 ટાઈમ ચોક્કસ બેસીને જમવાનું,
ભરપૂર જમવાનું, સાથે સાથે કહી શકાય કે સાદું જમવાનું પણ એ લોકો લેતા હતા, જ્યારે અત્યારના જમાનાની અંદર જોઈ શકાય છે કે લોકો જમવાનું બહારનું ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે એમ પણ કહી શકાય છે કે લોકોની અંદર એટલી બધી આવી ગઈ છે, બહારના ખાવાનો ચસ્કો એવો આવી ગયો છે કે જેને કહી શકાય કે લોકો અત્યારે બહારનું ખાવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે એમ પણ કહી શકાય છે કે લોકો અત્યારે એક્સરસાઇઝ પણ કરતા નથી, એટલે કે કસરતનો પણ અભાવ જોવા મળે છે. ચોથી વસ્તુ એવી છે કે હેબિચ્યુઆલિટી, જે રીતે સિગરેટ, તમાકુ, ગુટકા આ બધાનું સેવન છે, એના કારણે પણ ઘણીવાર હૃદયની તકલીફ થવાની સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે. ચોથી સમસ્યા એવી છે કે જ્યારે ખૂબ જ માનસિક તણાવ આવે ત્યારે પણ હૃદયરોગ થવાની સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે. એટલે કે ઘણી બધી સમસ્યાઓ હોય છે જે હૃદયરોગને લઈને હોય છે અને હૃદયરોગના કારણો માટે જવાબદાર પણ બનતી હોય છે. ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય છે કે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી જ્યારે અમે આ વિષય લઈને આપની સમક્ષ આવ્યા છીએ ત્યારે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે હૃદયને લગતી ઘણી બધી બાબતોનો આપની સાથે અમે પરિચય કરાવીએ. હૃદયરોગને લઈને કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હૃદયની અંદર જો સામાન્ય પણ દુખાવો થાય તો એને અવગણના કરવી ન જોઈએ. હૃદયની અંદર ઘણી બધી નળીઓ આવેલી હોય છે અને દરેકનું કામ અલગ અલગ હોય છે. હૃદયની અંદર ઘણી બધી સમસ્યાઓ પણ થતી હોય છે. ત્યારે આ વિષયને આગળ લઈને મારી સાથે ડૉક્ટર મુકેશ જોડે ગયા છે, જે હૃદયરોગ નિષ્ણાત છે અને ખૂબ સારી કામગીરી પણ कर रहा है. डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपका स्वागत है केटीवी न्यूज़ गुजराती के माध्यम से. जिस तरह से डॉक्टर साहब ये अभी जो हृदय की यानी कि हार्ट डिसीज़ या हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या बताएंगे इसके बारे में कि अब पहले का जो ज़माना था तब जो हार्ट डिसीज़ थी वो 55, 56 या फिर 60 या 70 की एज में होती थी. अभी की जो हार्ट डिसीज़ है वो 35, 40 के उम्र में भी होती है, तो इसका क्या कारण है? आपकी आवाज़ म्यूट आ रही है सर. जी, જોવા જઈએ તો જે રીતે ટેકનિકલ કારણોસર ડૉક્ટર મુકેશ આપણી સાથે जी जी डॉक्टर साहब, तो जिस तरह से पहले लोगों को बहुत कम हार्ट डिसीज़ हुआ करती थी और अभी बहुत सारी हार्ट डिसीज़ हो रही है, इसका कारण क्या है? नमस्कार। नमस्कार सर. सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी जी, बहुत अच्छी तरह से सर. बिल्कुल बिल्कुल. सो बेसिकली जो पहले आज से 10 इयर्स बिफोर जो पहले की जो कंडीशंस थी, जब पेशेंट्स हम लोग ओपीडी में देखते थे तो वो पेशेंट का प्रेजेंटेशन यूजुअली 60-70 ऑनवर्ड्स एज में होता था, और अभी यही सेम जो हार्ट की तकलीफ है वो 40-50 एज ग्रुप में ज्यादा होने लग गई जी. और उसका मेन रीजन जो है वो बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम एक लाइफस्टाइल डिजीज है. बेसिकली जो लाइफस्टाइल है वो अपन ने बदल दी है और उसी की वजह से हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज जल्दी कम उम्र में आ जाना, हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज कम करना, डायबिटीज जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिवलेंट हो चुकी है अपनी कंट्री में, वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है. वो भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है कम एज में पेशेंट्स को हार्ट डिजीज डेवलप होने का. तो ये सब मोटा मोटी कारण है जिसकी वजह से अपने को कम उम्र में हार्ट डिजीज अपनी कंट्री में देखने को मिल रही है. जी जी. Doctor Saab, there are so many reasons behind the heart disease, but which one most reason for that? Sorry? ये बहुत सारी जो होते हैं लक्षण उसके, वो तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके जो मेन जो कारण होता है कि जो रीज़न बोल सकते हैं कि इस रीज़न की वजह से जो लोगों में पहले बहुत हार्ट डिजीज़ कम हुआ करती थी और अब बहुत बढ़ गई है, उसके मेन रीज़न क्या है? मेन रीजन वही मेन जो है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये मेन रीजंस हैं हार्ट डिजीज होने का. और उसके अलावा हैबिट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस जो अपन ने लास्ट डिकेड्स में किया है उसकी वजह से अपने को हार्ट डिजीज अर्ली एज में आने लग गई है और वही मेन कारण है अपनी हार्ट प्रॉब्लम्स का.
जी सर, हम बहुत सारी बार ये हार्ट डिजीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिबेट्स कर गए और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी हमें बताया। उसमें से 3 रीज़न हमें बहुत ही वो वैल्यूएबल लगे। सबसे पहला है कि एक लाइफ़स्टाइल, जो चेंजिंग ऑफ लाइफ़स्टाइल। पहले अर्ली इन द मॉर्निंग द पीपल गेट्स अप, वो लोग उठ जाते थे और अपने काम पे चले जाते थे। अभी के जो इंसान है वो 8, 9 या 10 बजे उठते। दूसरी बात, जो पहले घर का ही खाना था, लोग घर का खाना ही प्रीफर करते थे और वही खाते थे। आज जो लोग हैं वो बाहर का खाना प्रीफर करते हैं। और सबसे तीसरी बात कि पहले के लोग जो अपना धंधा व्यवसाय या किसान होते थे, तो जो खेती करते थे, तो उसके अंदर वो अपनी एक्सरसाइज अपने आप ही कर लेते थे। अभी की जो ये लाइफस्टाइल है उसके अंदर एक्सरसाइज तो कहीं भी नहीं दिख रही है। लोग अगर यहाँ से 100 मीटर भी जाना हो तो अपने व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो ये वी हैव फाइंड आउट द 3 मोस्ट रीज़न फॉर द हार्ट डिजीज। इज इट राइट और नॉट? जी डॉक्टर मुकेश, ये 3 कारण हमने फाइंड आउट किए हैं, तो ये राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है विवेक जी। बेसिकली ये सारे जो आप कारण बता रहे हैं, ये बेसिकली अपनी लाइफ स्टाइल जो अपना रूटीन है, दिनचर्या है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पहले अपनी शुरुआत सुबह मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग उठने से होके होल डे अपना पूरा वर्किंग स्टाइल इस तरीके का होता था कि अपनी की बॉडी की एक्सरसाइज उसी के साथ हो जाती थी। जो अभी बिल्कुल बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ ऑल ईज वी गेट डे टू डे लाइफ में, उसकी वजह से अपने को ये सब चीजों से वंचित होना पड़ गया और अपन ने एक ऐसी लाइफ स्टाइल चूज कर दी जिसका डायरेक्टली अपने हार्ट के ऊपर इल इफेक्ट पड़ने लग गया। तो आप बिल्कुल सही है, ये मेन कारण है ये। और इन कारणों की वजह से ही आज हम सभी हार्ट डिजीज अर्ली एज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी। जो चौथी चीज़ होती है वो टेंशन हम बोलते हैं जिसको, या फिर बोलते हैं कि बहुत सारी सोच। अभी का जो ज़माना है, वो जो लोग रहते हैं वो कैरियर ओरिएंटेड रहते हैं। उन लोगों को बहुत सारे पैसे भी बना है, उन लोगों को कैरियर भी सेट करनी है, लाइफ पार्टनर भी सेट करना है। तो देर आर सो मैनी रीज़न बिहाइंड इट। तो वो लोग जो टेंशन में ज़िंदगी जीते हैं, या फिर पूरे दिन सोचना, स्मोकिंग करना, मोबाइल पे पूरे दिन व्यस्त रहना, ये थोड़े थोड़े कारण भी कहीं ना कहीं हार्ट रोग है उसको रिलेटेड है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल विवेक जी, आप ये समझिए कि बाकी सब चीजों का मेजरमेंट है आपके पास में। आप ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हो, जी डायबिटीज चेक करा सकते हो, पर आपके पास में स्ट्रेस का कोई मेजरमेंट नहीं है। जी एक पर्सन की लाइफ में क्या स्ट्रेस है, किस लेवल से स्ट्रेस से वो ग्रसित है, किस लेवल के स्ट्रेस से वो निकल रहा है, वो केवल वो पर्सन ही जानता है। जी और आज की सोशल मीडिया की लाइफ में जो देखा देखी, जो एक दूसरे की लाइफ को कॉपी करना, उसके साथ में कॉम्पीट करना, जॉब के साथ कॉम्पीट करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाके एक स्ट्रेस फैक्टर बनती है। और जो एक्सपेक्टेशन है जी एज ए मेंबर फैमिली की आपसे, और वो आप उसकी फुलफिलमेंट के लिए जो स्ट्रेस आप कैरी ऑन करते हो, वो डेफिनेटली आपकी एक स्ट्रेसफुल लाइफ का कारण होती है और वो डायरेक्टली आपका हार्ट पे इफेक्ट डालती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें जो एक एक्यूमुलेट होती रहती है और स्लोली स्लोली आपका वो स्ट्रेस लेवल आपके लिए एक तकलीफ का कारण बनता है। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्ट्रेस एक फैक्टर है अपनी हार्ट प्रॉब्लम के लिए। जी, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं हार्ट के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किए और एक रीज़न फाइंड आउट ये भी किया है कि एक हेल्दी इंसान है जो अच्छा खाना खाता है, दिन में 15, 20 या 25 मिनट एक्सरसाइज करता है, अपना दिन बहुत खुशी से व्यक्त करता है, उसको हार्ट डिसीज़ बहुत कम होती है। लेकिन जिसके पास बहुत सारे पैसे भी हो, खाने की कोई कमी ना हो, लेकिन अगर उसकी रूटीन लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, या फिर वो 2 टाइम का खाना भी अच्छी तरह से नहीं खा रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो अगर उसके पास बहुत सारा होने के बावजूद भी ये हार्ट डिसीज़ होते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है। बेसिकली आप अपनी लाइफ में हर एक के इंसान की लाइफ में स्ट्रेस होता है। बिना स्ट्रेस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट आप वो स्ट्रेस को कैसे इन ए डे आप मैनेज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपका फ्रेंड सर्कल, आपका प्रॉपर रेस्ट, आपका प्रॉपर फूड डाइट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपके स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए और एक आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करने के लिए। बिल्कुल आप सही है इस चीज के लिए कि अगर आपके पास में एक अच्छी दिनचर्या है, अच्छा रूटीन है, उसके साथ में आपको एक आप जो चीज कर रहे हैं लाइफ में, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एक आपको एंजॉय है, आपको जॉय है, वो करने का एक आपको पैशन है,
और उसको आप एंजॉय लेके करते हो, तो वो आपको विदाउट स्ट्रेस आपको लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल रहती है, आपकी लाइफस्टाइल के लिए, आपकी रूटीन के लिए। और वो आपको आपके स्ट्रेस फ्री लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जी जी। डॉक्टर मुकेश, अर्ली इन द ईयर्स जो बहुत साल पहले एक सिस्टम हुआ करता था कि रात को बहुत लेट, यानी कि 10 बजे तो सो ही जाना है, सुबह 5 बजे उठ ही जाना है, तो एक रूटीन रहता था 8 to 9 आवर्स कंप्लीट स्लीपिंग, और रेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता था। आज का जो जनरेशन है वो रात को 2 या 3 बजे तक जगता है, सुबह 8-9 बजे तक सोता रहता है। और दूसरी बात, अब जो ये मोबाइल की जो हैबिचुअलिटी हो रही है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रीज़न फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में ये भी सामने आया है कि जो लोग बहुत रात को लंबे समय तक मोबाइल पे रहते हैं या वो जगते रहते हैं और जो वीडियोस देखते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं या फिर उसको लेके जो स्ट्रेस लेवल मेंटेन होता है, सो मैनी साइकेट्रिस्ट हैड रिसर्च ऑन दैट वे, और उन्होंने भी ये साबित करके रखा है कि अगर आप कंप्लीट रेस्ट नहीं लेंगे, 8 to 9 आवर कंप्लीट स्लीपिंग, ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन मोबाइल आपके साथ है, तो एक ये रीज़न भी डॉक्टर साहब सामने आया है। और बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ने ये भी साबित किया है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो लोग हैं उनके हाथ में से मोबाइल ले लेना है, उनको 10 बजे सुला देना है और 8 बजे उठा देना है। तो इसी ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोग क्योर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। एक मोबाइल, जैसे कि अपन जान रहे हैं कि आज की दुनिया में आपकी पूरी दुनिया, आपकी पूरी लाइफ जो है वो मुट्ठी में है। मुट्ठी इन सेंस आपके मोबाइल में है। जी। वट एवर यू डू, यू कैन डू थ्रू मोबाइल, और सब कुछ आप अपने एवरीथिंग, मोबाइल यू गैजेट कैन से डू एवरीथिंग फ्रॉम मोबाइल साइड। या सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने बैंकिंग, आप अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ आप इसी से मैनेज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली एक काइंड ऑफ फैसिलिटी वी आर कैरिंग, डेफिनेटली, बट इसके साथ में वी आर एडिक्टेड टू दैट। अब एक इस तरह का एडिक्शन हो चुका है जो अपन क्रूशियल टाइम जो अपने को फैमिली को देना चाहिए, जो अपने फ्रेंड्स को देना चाहिए, जो अपने घर पे बिताना चाहिए, वो अपन टाइम हम सब लोग मोस्टली उस मोबाइल के साथ अटैच हो जाते हैं। और वो लेट नाइट तक उसमें उसके साथ में बंधे रहना, उसके साथ में एंगेज रहना, वो सारी एक्टिविटीज आपकी लाइफस्टाइल को खराब करती है। और साथ में आपके रिलेशन, जब आप अपने आप अपने बॉन्डिंग, अपनी रिलेशनशिप बेटर बना सकते हैं विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद किड्स, वो टाइम अपन एक गैजेट के साथ बिता रहे हैं जो कि कोई इमोशन लेस, फीलिंग लेस है। और उसके साथ में वो कैरी ऑन करना एक एक स्ट्रेस का कारण बनता है, एक अपनी खराब दिनचर्या का भी कारण बनता है। तो एक अपने आप को इस गैजेट के साथ में किस तरीके से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना, किस तरीके से पाबंद करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन रहता है। पर्टिकुलर डे लाइफ में मॉर्निंग टू इवनिंग वी हैव टू कैरी दैट गैजेट। अपने को उसके साथ में रहना है। उसके साथ में आज की दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, आपके सारे मैसेजेस, सब बैंकिंग, काम, वर्क, वो सब कुछ इससे रिलेटेड है। तो डेफिनेटली अपने को वो यूज करना है। उसके साथ में उसकी जो फैसिलिटी है वो यूज करना है। बट जब आप उसको ओवर करते हैं, जैसे आप अपना वर्क ओवर कर डे में आप खत्म करके या ओवर करके जब जाते हैं, तो सेम वे में आप अपना ये गैजेट रिलेटेड वर्क भी आप ओवर करके आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उसको जितना मिनिमम हो सके यूज करें। ये इस तरह के स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं जो अपन एज ए पर्सन करके अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं। ये स्ट्रेस फैक्टर जो गैजेट रिलेटेड बना है उसको अपन दूर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे साइकाट्रिस्ट ने एक रिसर्च किया है बहुत सारे लोगों को लेके कि जो एक सैनिटरी लाइफस्टाइल अभी हो गई है, दो चीज़ों में हम बढ़ गए डॉक्टर साहब। एक पहली चीज़ ये है कि वहाँ पे हम अपना कैरियर ओरिएंटेशन के लिए लड़ते रहते हैं, अपनी जॉब के लिए लड़ते रहते हैं, पैसे कमाने के लिए लड़ते रहते हैं, अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ते रहते हैं। दूसरी जगह ऐसी है कि जो लोग होते हैं लोअर मिडिल क्लास लोग, दे आर नॉट हैबिचुअल टू मोबाइल इवन, और उनको पता भी नहीं है, तो दे आर हैप्पियर देन द रिचेस्ट पर्सन। क्या कहेंगे इसके बारे में? थोड़ा
मेरा इसके बारे में मानना थोड़ा, बिकॉज आज के टाइम में इवन आपका जो पियोन है या जी। आपका जो स्वीपर है, एवरीबडी इज कैरिंग गैजेट। No, आप no, ये I am समझिए। I'm talking about the people who are living on the footpaths, who are they don't have their own home even that, but they are very happy because they don't have that kind of habituality. Doctor Saab, I just want to talk on that messages. या ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, या दे डोंट हैव Yes, दैट लिवरेज टू यूज दीज डिवाइस, तो yes, वो उसकी वजह से जरूर उनकी लाइफ में वो कह सकते हैं कि वो उनको स्ट्रेस या वो उसको लेके एडिक्शन नहीं है उनकी लाइफ में। बट उसका एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शन उनके लिए, ये अपने लिए ये जजमेंट लेना कि वो अपने लिए बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल no, है, no, no, वो उनके that बेसिस would पे be the अपन different, but whatever the things is came from the analysis is that कि they are the happier than are, and reason is that कि they are not habitual like the other things, जिसके तरह से हम जिस तरह की लाइफ सेनेटरी लाइफ टाइम हम जी रहे। अगर अपना छोटा बच्चा भी देखिए घर के अंदर, डॉक्टर साहब, अगर 1 साल का 6 महीने का या 1 साल का बच्चा हो, इफ़ यू आर नॉट अलाउड टू गिव हिम हर अवर मोबाइल, देन दे आर ट्राइंग टू बीन क्राइड, यू नो, तो वो रोने लगते हैं। और अगर उनको तो बड़े बड़े भी लोग होते, दे आर नॉट हैबिचुअल। आई एम जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि डॉक्टर साहब, ये जो हम जिसको हम फैसिलिटी मानते हैं, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि एक स्टेटस मानते हैं, वही चीज़ कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के साथ प्ले कर रही है। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? वही मैं जैसा कि पहले बताया कि जी। ये सारी फैसिलिटीज है जो Yes. आपकी लाइफ को ईज करती है, जो आपको एक कंफर्ट देती है, पर उस कंफर्ट का अपने बॉडी के ऊपर इफेक्ट आए, वो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट हो, तो वो अपना मिस यूज है उसके साथ में। Yes. तो ये एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक किसी भी गैजेट डिवाइस के साथ में आप एक बैलेंस कैसे कैसे स्टेब्लिश करते हैं और उसके साथ में अपने आप को कैसे ग्रो करते हैं। ये एक न्यू इरा है, न्यू लाइफ है, न्यू काइंड ऑफ फैसिलिटीज है जो कि नेक्स्ट लास्ट जनरेशन ने शायद इतना उसके साथ में इक्विप नहीं थी, जी। बट अभी की जनरेशन जो इसके साथ में ग्रो कर रही है, उनको ये चीजें लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपन गैजेट्स के साथ में एक बैलेंस बिठाएं जो अपनी लाइफस्टाइल को भी बेटर करे और साथ में अपने को एक डिजीज फ्री एनवायरनमेंट भी दे। और जो आपने मेरे को बात बताया पहले कि एक जो पर्सन इन चीजों से फैसिलिटीज नहीं है उसके पास में, या वो इन चीजों को यूज नहीं कर पा रहा है विदाउट वट एवर रीजन इट इज, डेफिनेटली उन लोगों के साथ में ये चीजें जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सब चीजों के साथ में वो बहुत अच्छी सी लाइफ स्टाइल निकाल पाते हैं। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देख लीजिए जिनके साथ में ये सब कभी डिवाइसेस थी नहीं, और उनकी लाइफ स्टाइल को अगर आप कंपेयर करेंगे अभी आज की जनरेशन के साथ में, तो उनकी लाइफ स्टाइल और अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा अंतर है। आप जब कभी भी मैं एक हेल्दी पर्सन जो कि 70-80 प्लस होती है और उनकी एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है, आई यूज्ड टू स्पेंड 4-5 मिनट्स विथ हिम ओके। कि भाई उन्होंने अपनी होल लाइफ में ऐसा क्या किया कि जो उनका आज भी जब अपनी एंजियोग्राफी की तो एकदम नॉर्मल आई है। तो वो यही मिलता है कि मैंने कभी बाहर का खाया ही नहीं, देखा ही नहीं है। इवन वो कहते हैं कि मैंने देखा ही नहीं है बाहर का, रोज उनका खाना पीना नियमित रहता है, उस टाइम पे ही रहता है। आप क्लॉक उनके साथ मैच कर सकते हैं। मेरे ग्रैंडफादर का लंच 1 o'clock होता था, तो आज भी मैं कह सकता हूँ कि 1 o'clock उनका लंच होता है। क्लॉक बंद हो सकती है पर उनका लंच 1 o'clock ही Yes. रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से 70-80 ईयर्स तक कैरी ऑन किया है, जो कि एक कमांडेबल है। और उनके लिए जरूर एक डिसिप्लिन चाहिए होता है लाइफ में, जी। वो डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। Yes, एक डिसिप्लिन रहेगा तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगी, एक डिजीज फ्री लाइफ मिलेगी, और उसके लिए आपको इतना एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है। यस यस डॉक्टर मुकेश, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शक मित्रों को आपने इतनी अच्छी ઇન્ફોર્મેશન आपके द्वारा दी। દર્શક મિત્રો, આ હતા ડૉક્ટર મુકેશ કે જેને આપણને હૃદયરોગ વિશે ઘણી બધી માહિતી આપી। પોતે પણ સારી હૃદયરોગની સારવાર કરી રહ્યા છે અને ઘણા બધા લોકોને સાજા પણ કરી રહ્યા છે। પણ એક વાત કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી અહીંયા કહેવા માંગીશ કે દરેક રોગનું એક મુખ્ય કારણ આપણી જીવનશૈલી બદલાઈ છે, એ છે ઘણી બધી ડિબેટ કર્યા પછી, આપણું હેલ્થ કાર્યક્રમના ઘણા બધા એપિસોડ કર્યા પછી એક તારણ તો નીકળ્યું છે ચોક્કસ દર્શક મિત્રો, કે જો આપણે સારી જિંદગી જીવવી હોય તો એટલે કે સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ એટલે કે બહુ જ વિચારવાનું, ઊંડો વિચાર આપણે છોડી દેવો પડશે। 2 ટાઈમ જમવાનું પ્રોપર રાખવું પડશે,
15-20 મિનિટ દિવસમાં એક્સરસાઇઝ કરવાની રહેશે. જો ધૂમ્રપાન કે તમાકુ કે આપણને ગુટખાની હેબિટ હોય તો એને છોડવી પડશે. તો આપણે પણ સારી જિંદગી જીવી શકીએ છીએ. દરેક માણસ સારી જિંદગી જીવી શકે છે, પણ અત્યારના જે ફેક્ટરો છે ઘણા બધા અસર કરતા હોય છે. તો કાલે મળીશું એક નવા ડૉક્ટર સાથે, એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી. સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી. નમસ્કાર.